Our today's topics are precautions, importance, and difficulties faced in value-added method. What are the precautions necessary for value-added method? What is the importance of value-added method, and what are the difficulties faced in the value-added method? So first of all, we will take the precautions. Precautions necessary for value-added method. Value-added method. ठीक है? Precautions समझ आता है? Precautions क्या होता है? हमें किन चीजों की तरफ होशियार रहना है, किन चीजों का एहतियात हमें करना है while estimating the national income through value added method. If we are going to count the GDP of a country through value added method, किन किन चीजों का हमें ख्याल रखना है, होशियारी रखनी है, खबरदारी रखनी है। कुछ चीजें ऐसी हैं, इनको हम कहते हैं डूज एंड डू नॉट्स। कुछ चीजें करनी है, कुछ चीजें नहीं करनी है। So those are included in the precautions. हम सीधा लिखेंगे precautions or necessary for value added method. For value added method. कुछ precautions हमारे पास है। फर्स्ट प्रिकॉशन है, फर्स्ट प्रिकॉशन जिस चीज का हमें पहले ख्याल रखना है, द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। कुछ पॉइंट्स हम लिखेंगे, 5-7 पॉइंट्स। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, ये इंक्लूड करना है या नहीं करना है? यस सर। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड करना है जीडीपी में। should not be included in GDP. ये तो हम आज 4 दिन से पढ़ रहे हैं। The intermediate goods should not be included in GDP. जब हम GDP काउंट करेंगे तो इंटरमीडिएट गुड जो है उनको हम एक्सक्लूड करते हैं। वही तो वैल्यू एडेड बन गया ना, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। जब माइनस हमने किया, दैट मीन्स दे आर एक्सक्लूडेड, देयर वैल्यू इज एक्सक्लूडेड। Yes. Number 2 है, the purchase and sale of second-hand goods should not be included in GDP or GNP. Purchase and sale of second-hand goods or income received from purchase and sale of second-hand goods. Income received from sale of second-hand goods. Second-hand goods should not be included in GDP. ये समझ आ गया? यस सर। क्या समझ आ गया? सर ये इंटरमीडिएट तो है। इंटरमीडिएट तो पहले हो गया। यस जो सर। इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनको हमें जीडीपी में नहीं करना है। खाली फाइनल गुड को हमें ये देखना है, whether this good is final, it has reached to the consumers or not. If it is in the production process still crossing the different stages of production, we should not include in GNP. The income earned from or received from sale of second hand goods. For example, मैं ऐसे कहूंगा, हमने 2019 का जीडीपी काउंट किया, ठीक है? यस सर। उस जीडीपी में फॉर एग्जांपल एक कार है JK09 D कुछ 5216 इसका नंबर है। तो ये कंपनी से आ गई,
ये कंपनी से आ गई, किसी आदमी ने इसको ले लिया, तो इसके फॉर एग्जांपल वी हैव इंक्लूडेड 4 लाख रुपीस of this car. It has been sold for 4 lakh rupees in 2009 and we included this 4 lakh in the GDP of 2019. 19. सही है ना? कंपनी ने एक कार बनाई, एक कस्टमर आ गया, उसने ले लिया 4 लाख में, तो हमने ये this is not second hand, this is first hand good. First hand, yes sir. अब this is include. ये इंक्लूड हो गया। अब यही कार 2020 में जिस आदमी के पास था उसने इसको बेच दिया, तो ये सेकंड हैंड sold it for 3 lakh rupees. जब हम जीडीपी ऑफ दिस 2020 हम काउंट करेंगे, क्या इसमें ये 3 लाख इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? नो सर, नहीं, क्योंकि इसका कीमत ऑलरेडी जीडीपी में हमने काउंट किया था। नहीं, This is the thing here which we are discussing, that is income received from, अब जो जिस कस्टमर ने 2019 में इसको खरीदा था 4 लाख में, अब यहाँ इसका एक्सपेंडिचर था ये 4 लाख, यहाँ इसका इनकम ये बन गया 3 लाख। So this customer of 2020 has received or earned income of 3 lakh rupees, but it was already included in the year 2019. So income earned from sale of second hand goods is not included, is not included. ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया। अब तीसरा पॉइंट हम उठाएंगे, जल्दी जल्दी करो। थर्ड पॉइंट जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करो। द ब्रोकरेज and commission. The brokerage and commission paid to brokers. Yes sir. Paid to brokers and agents of second hand goods. Second hand goods should be, क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? The brokerage and commission paid to या earned by brokers and agents of second hand goods should सर वो एक्सक्लूड करेंगे। एक्सक्लूड करना है, यस सर। इंक्लूड करना है, that is included। सेकंड हैंड करना है, सेकंड हैंड है ना, इंक्लूडेड इन जीडीपी। अब बात हम डिस्कस करेंगे। अभी देखा ना 2019 में कार सेल हो गई फॉर 4 लाख रुपीस, ठीक है। इसी कस्टमर ने 2020 में इसको भेजा है 3 लाख में, 3 लाख। यस सर। यहाँ हमने इंक्लूड किया, ये यहाँ ये एक्सक्लूड हो गया, ठीक है। यस सर। लेकिन एक बात है, कोई आदमी सेकंड हैंड गुड खरीदता है और बेचता है, उसका काम यही है। ही इज कॉल्ड द एजेंट्स ऑफ सेकंड हैंड, उनको ब्रोकर्स हम कहते हैं, दलाल कहते हैं। yes, जो बेचते हैं। हाँ, इसने 3 लाख में कार यहाँ ले ली, कितने में? 3 लाख। और फातिमा को बेच दिया 3,20,000 में। यहाँ 20,000 इंक्लूड होंगे, ये 20,000 इंक्लूड होंगे, बिकॉज इट इज हिज ब्रोकरेज कमीशन। ये उसका कमीशन है, ये उसका जो बीच वाला आदमी है, जो जहां ब्रोकर नहीं है वहां कमीशन भी नहीं है। अगर ए एंड बी ने खुद डील फाइनल की, इसने 3 लाख इसको दे दिए, खत्म, मामला खत्म। अगर इफ बी इज ब्रोकर, इसने सी को बेच दिए, इसने यहाँ 3 लाख में लाई और इसको 3,20,000 में दे दी, जो 20,000 है दैट इज इंक्लूडेड इन जीडीपी।
क्योंकि उसकी मेहनत है ना, ये उसकी मेहनत का पैसा है ना, Yes, sir. हैं? उसने अपना कमीशन Yes, जो Yes, sir. अपनी सर्विसेज उसने सेल किए हैं, दैट मीन्स हिज सर्विसेज आर पेड सर्विसेज, दे आर नॉट अनपेड, they are paid services valued in terms of money. So all those services or all those exertions which are valued in terms of, which are marketable, which are sold, bought and sold in the market, so commission Yes, or earnings of those services is included in national income. income. ये दो वर्ड यहां पर है, एक तो है एजेंट, दूसरा है ब्रोकर। एक तो है एजेंट, दूसरा है ब्रोकर। Broker. ब्रोकर दलाल को कहते हैं। ये ब्रोकर यहाँ और एक चीज के लिए भी इस्तेमाल होता है, शेयर मार्केट होता है ना, Yes, sir. वहां पे ब्रोकर्स होते हैं, वो ए से Yes, sir. शेयर Agent लेते हैं, होते बी हैं को बेच उसके देते मतलब हैं, आदमी। बीच में कुछ कमीशन उनको मिलता है, ब्रोकरेज जिसको कहते हैं, ब्रोकरेज। Yes, sir. पेड टू द ब्रोकरेज, जो हमने लिखा है ब्रोकरेज, ब्रोकरेज इज अर्नड बाय द ब्रोकर्स ऑफ शेयर मार्केट, ब्रोकर्स इन Yes, द sir. Yes, sir. शेयर मार्केट। सो दैट इज Share आल्सो market. शेयर का अपना कीमत इंक्लूड नहीं होता है, you should remember the value of shares is not included but the brokerage is included. ये कुछ खास खास चीजें हैं, बारीक चीजें हैं, इसमें समझने की जरूरत है। Yes, sir. मैंने 1000 शेयर JNK के ले लिए, वो मैंने फॉर एग्जांपल 1 लाख में ले लिए, ये 1 लाख इंक्लूड नहीं होगा, नहीं होगा। it is simply financial transaction between one person and another person, between the people. यहाँ कोई there is no production of goods and services, but जो ब्रोकर खरीदते हैं और सेल करते हैं, उनका जो कमीशन है, ब्रोकरेज है, वो इंक्लूड होता है। ये आप लिख भी सकते हो, द ब्रोकरेज अर्नड बाय द ब्रोकर्स इन द शेयर मार्केट, ये आप लिख सकते हो, द ब्रोकरेज अर्नड by the brokers of shares is included, is Earned by the brokers of shares, brokers of is included in Shares. in GDP, but the value of shares is not included. ये भी आप लिख सकते हो, the value of shares is not included, shares is not included in GDP, in GDP. जो शेयर्स का वैल्यू है वो इसमें नहीं होता है। और क्या है, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। The value added in the government sector is equal to the compensation of employees only. It is because the data regarding rent and interest are not available for this sector, and the profit just does not exist because all that is produced is meant for collective consumption, not for sale in the market. The government refers to government as a welfare agency. Government as the owner of public sector enterprise producing for profit is included in the producing sector of the GDP. economy. Thus, value added in the government sector is equal to the compensation of employees only. So it is included in national income. क्या है? So what government pays to the employees for providing services to the people, that is included. Yes, sir. So that is, it is because the data recording. So ये हम लिख सकते हैं 6, the value added by government, the value added by government is included in GDP, which is equal to the compensation of employees, compensation of equal to the compensation of government employees. ठीक है? Yes, sir.
Services for self-consumption is not considered while estimating value added. Services of self-consumption is not included. Is not Included. included. Services of self-consumption is not considered while estimating value added, simply because it is difficult to estimate their market value. Like for example, services of housewives. Services of self-consumption is not Yes, sir. in GDP, GDP. like services of housewives. Services Yes, sir. of housewife. घर में औरत काम करती है, अगर उसके बजाय हम नौकर लगाएंगे जो उसको तनख्वाह देते हैं, that is included. But GDP में होगा. Yes, sir. हाँ, जो खुद काम कर, जिसके लिए कोई मार्केट वैल्यू हम नहीं मुश्किल कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, that is not included. Imputed value of production for self-consumption is taken into account because these goods are like those produced for market. They are not sold simply because of their need by the producers themselves. So that is imputed value of production for self-consumption. Imputed value of production for self-consumption. Or self-consumption is included in GDP. ये समझ आ गया? नहीं आ गया? Imputed value होता है imaginary value. The value judged or imagined for a product if it is sold and bought in the market, how much value it could earn. For example, हमने घर में कोई चीज बनाया और घर में ही इस्तेमाल किया, मार्केट ये नहीं गया. हमने फॉर एग्जांपल एक वेजिटेबल गार्डन घर में, हाँ, सब्जी जो वर्ड छे इस बना, जिसको हम सब्जी वाली कहते हैं. हम कमाते हैं वहां पर, खाते भी हैं, सब्जी हम ये उगाते हैं, and that is consumed at in by family members. Self-consumption, that is used for self-consumption. वो self consumption के लिए Yes. तो उसका जो वैल्यू है वो हमें इंक्लूड करना है, हमें इमेजिनरी वैल्यू कुछ बनाना है. फॉर एग्जांपल हमने 1 or 2 kgs of these vegetables, 2 kgs of Yes, sir. carrot, इसी तरह onions, इसी तरह वो बाकी चीज पोटैटोज हमने घर में प्रोड्यूस किए और घर में ही इस्तेमाल किए. अगर ये चीजें हमने मार्केट से लाई होती तो कितना वैल्यू बनता है इसका, दैट इज इंक्लूड, दैट इज उसी को कहते हैं हम imputed. इट इज इमेजिनरी वैल्यू, इट इज इमेजिनरी. इसी तरह रेंट ऑन द owner occupied house is also taken into account because all houses have rental value no matter these are self-occupied or rented out. That is imputed rent of self-occupied house. Imputed rent of self-occupied house. Imputed rent of self-occupied house is included in GDP. ये समझ आ गया? अपना मकान है, खुद अपनी फैमिली इसमें रहाइश करती है, तो उसका रेंट मंथली या ईयरली कितना बनता है वो जीडीपी में इंक्लूड करना है. राबिया का एक मकान है हंदवारा में, तो इसको कंसीडर करना है. अगर मैं किराए पे यहाँ बैठूंगा, एक कोई राजवार का आया है, कोई मागाम का आया है, कोई दूसरे जगह का आया, उसने इसके बगल में एक मकान ले लिया, वो उसको रेंट देता है. तो राबिया करना है कि अगर मैंने ये मकान रेंट पे लिया होता तो मुझे कितना रेंट देना पड़ता साल में, तो उसका वो इमेजिनरी रेंट है, वो इम्प्यूटेड रेंट है, वो उसको इंक्लूड करना है जीडीपी. सो दिस इज द परफेक्ट एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी. कुछ चीज रहना नहीं चाहिए, कुछ कोई
अनकाउंटेड नहीं रहना चाहिए. एवरीथिंग शुड बी काउंटेड इन द इकोनॉमी. इन द Yes, इकोनॉमी वैल्यू ऑफ सेल्फ यूज्ड सर्विसेज शुड बी इंक्लूडेड. क्या है ये? So then the next, so this is all about the precautions. क्या क्या precautions है, ये समझ आ गए सब? अब हम Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब हम, ये आसान है, ये आसान सा है. अब हम उठाएंगे the importance. Next is importance of Importance. yes, importance. कहाँ कहाँ ये जरूरत आता है? ये तो हर जगह जरूरत है. तो importance क्या है इस चीज की? Importance. Next, importance of value Value added. Method, value added method. The value added method is important than other methods in a number of ways. Its importance is as under. Number first, it is more realistic than other methods because it avoids double counting. First, it is more realistic. ये कुछ सच्चा सा है, true Yes, method sir. लग रहा है. It is more realistic than other methods because it avoids It excludes double counting. double counting. बहुत बड़ा जो मेरिट इसका है, it avoids double counting. ये double counting avoid करता है. कैसे avoid करता है? By excluding the value of intermediate goods. The value of intermediate goods. पहला इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? It avoids double counting by किस तरह? By excluding the value of intermediate goods. Second इसकी इंपॉर्टेंस है, through this method we can see contribution of each producing unit to the value of GDP. इससे हमें अंदाजा यह भी लगता है कि किस प्रोड्यूसिंग यूनिट ने, किस फर्म ने कितना कंट्रीब्यूट किया हमारे जीडीपी में, किस सेक्टर ने, किस यूनिट ने कितना कंट्रीब्यूट किया. बिकॉज इट काउंट्स ओनली वैल्यू एडेड. कितना राबिया ने रॉ मटेरियल के बगैर अपना काम कितना किया इस चीज पे, तो इसकी कंट्रीब्यूशन मुल्क के लिए कितनी कंट्रीब्यूशन इसने दे दी, दैट इज काउंटेड. Through this method we can estimate the contribution of each producing unit or sector to the GDP, or GNP. Now next, it is a mean of checking the GNP estimate obtained by adding various types of goods produced. Contribution of each producing unit or sector to the GDP. It provides means of checking. It provides the means of checking. The GNP. The GNP estimate obtained by adding the various types of goods produced. Adding the GNP various types of goods produced. It provides the means of checking the GNP estimate obtained by adding various types of goods produced. ये act करता है as a mean of check. So these are the
इम्पोर्टेंसेस, इम्पोर्टेंस, यस। अब रह गया हमारे पास क्या है, डिफिकल्टी, Sir, by adding the various types of goods produced, by adding the various types of goods produced, yes. नेक्स्ट हमारा है इट्स डिफिकल्टीज, क्या क्या आते हैं, डिफिकल्टीज ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। डिफिकल्टीज क्या क्या है? नंबर फर्स्ट है, इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन इंटरमीडिएट गुड एंड ए फाइनल। ये बहुत मुश्किल है। एक कंपनी ने चीज बनाया, उसके लिए वो फाइनल गुड है, वो बताएगा बस मेरे लिए ये फाइनल। अब ये किस स्टेज में जाएगा, ये हमारे लिए मुश्किल है, वेदर दिस गुड इज इंटरमीडिएट और फाइनल, वेदर दिस इज इंटरमीडिएट और फाइनल ना। कोई एग्जांपल आपके पास है? मैंने उस दिन वो शीशों की वो दे दी एग्जांपल। कोई प्लेट बनाता है और बेचता है, yes sir, वो शीशे लाता है और फ्लेट इसको लगाता है और सेल करता है, तो उसके लिए वो इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट जिसने शीशा बेच दिया उसके लिए एक फाइनल कंज्यूमर आ गया, उसको लगा कि ये फाइनल कंज्यूमर है, ये अपने अपने मकान के लिए लगा रहा है। तो इसी तरह देयर आर सो मेनी अनकाउंटेबल एंड नंबर ऑफ गुड्स which we cannot distinguish whether they are intermediate or final. It is difficult to distinguish between an intermediate good and final good. and final good. ये बहुत मुश्किल है ये डिस्टिंग्विश करना। नंबर सेकंड है, इट्स द यूज ऑफ गुड्स व्हिच टेल्स अस वेदर द गुड इज इंटरमीडिएट और फाइनल। इट इज द यूज ऑफ गुड्स, बेसिकली जब इस्तेमाल होता है चीज तो तब पता चलता है ये, लेकिन ये मुश्किल है कि हम चीज के गुड के पीछे पीछे जाए, ये कहां उन्होंने लगाया है। इट इज द यूज ऑफ गुड्स, it is the use of goods which tell us whether the good is intermediate or final. It is intermediate or final. Yes, next difficulty. Third है, it is difficult to estimate the value added of, ये बहुत अहम है, but very very important. It is difficult to estimate the value of self-employed persons. It is very difficult to estimate. It is very difficult to estimate the value added or income earned. Value added or income earned by self-employed persons. आपको पता है सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस कौन होते हैं? जो खुद कमाते हैं, जो खुद अपना रोजगार बनाते हैं और कमाते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस। yes sir, कौन कौन है वो? लाइक कोई जनरल स्टोर होता है, बिजनेसमैन, हाँ बिजनेसमैन भी आ सकता है, कोई डॉक्टर होता है अपने क्लिनिक पे गवर्नमेंट नौकरी, Yes. यस सर, प्राइवेट क्लिनिक, यस सर, एडवोकेट्स होते हैं, इसी तरह Yes, चार्टर्ड sir. अकाउंटेंट्स होते हैं, सीएस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, who work in Yes, so yes. many jobs, जो so many job Yes. करते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता है कि डॉक्टर ने कितना कमाया दिन को, क्लिनिक पे किस टाइम कितना कमाया, थिएटर पे गया, प्राइवेट अस्पताल में गया वहां। तो ज्यादा मुश्किल है वकीलों का, तो उनकी तो बात ही नहीं, वी कैन नॉट इमेजिन कि वो
कोई एस्टिमेट कितना नहीं कर सकता। कमाते हैं? वो कभी कुछ भी नहीं कमाते हैं, साल महीने में कुछ भी नहीं कमाते, एक दिन ही 1 लाख कमाते, 1 घंटे में 5 लाख कमाते, Yes, sir. ये पता नहीं चलता है। हाँ, फोर्थ है, it is difficult to estimate the rental value of self occupied buildings and value of self consumed goods. है ना मुश्किल? It is difficult to estimate the rent of self-occupied building and value of self-consumed goods. Value of self-consumed goods. Good. ये भी मुश्किल है। अपने घर में रहते हैं तो इसको हम किराया एस्टिमेट क्या कर सकते हैं? इट इज वेरी डिफिकल्ट। No, sir. Yes, sir. अपने गार्डन से, अपने वेजिटेबल गार्डन से सब्जी लाई तो दिन में, महीने में, हफ्ते में, साल में कितनी सब्जी हमने लाई, इसको एस्टिमेट करना है। अपनी खेती बाड़ी, हमने धान की खेती बाड़ी की तो खुद सेल्फ कंज्यूम किया तो कितना धान आ गया, कितना राइस हमारा निकल गया है? बाग से हमने सेब लाए, घर में खाए तो कितना खाया, ये कोई एस्टिमेट ही नहीं करता है। कभी देखा है किसी ने एस्टिमेट किया है कि हमने सब्जी कितनी लाई, कितना जीडीपी में ऐड हो गया, या मेरे मकान का किराया कितना हो गया? These are the difficulties which we face in the value added method. In the value added method. आज के लिए इतना ही। The next day we will discuss the income method, very oldest one. Yes, conventional method. वो how to estimate the GNP of a country through income method. तो आज के लिए इतना ही। This is enough for today. Thank you very much. Thank you very much. Allah Hafiz. खुदा हाफिज़।